Hello student, this is Sapna Sangh from Seth Jayaprakash Polytechnic Damla, and my today's topic is formulae for expansion and factorization. In earlier classes you have studied about various algebraic formulae. Okay, so today first of all we revise all those formulae and will learn how to apply these formulae while solving certain expressions. Okay. So, if A and B are two numbers, then A plus B whole square is equal to A square plus B square plus 2AB. Similarly, A minus B whole square is equal to A square plus B square minus 2AB. Okay. Third formula is A plus B whole cube is equal to A cube plus B cube plus 3AB bracket start A plus B bracket closed. Next is A minus B whole cube is equal to A cube minus B cube minus 3AB bracket start A minus B bracket closed. Next is A square minus B square is A minus B into A plus P. तो जो पहली जो चार फॉर्मूले हैं, these are the expansions, but this fifth one formula जो है, that is factorization. You have break this expression into product of two factors. Okay. Next is A cube minus B cube, that is A cube minus B cube is A minus B bracket A square plus B square plus AB bracket close. Next, A cube plus B cube equal to A plus B ब्रैकेट स्टार्ट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB. तो आप देख सकते हैं इसमें से पहले चार तो एक्सपेंशंस हैं, 1 2 3 और 4. दीज आर दी 4 एक्सपेंशंस. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द 3 आर दी फैक्टराइजेशन. ओके, next we will learn how to apply these formulae. Question is, expand 3x minus 4y whole square. Okay, think over it. This expression matches to which formula? Okay, if you remember, this is nothing but A minus B whole square is equal to A square plus B square minus 2AB. तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने से हमें पता लगा A की वैल्यू 3x है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है. ओके, फिर B जो है दैट इज इक्वल टू 4y. सो पुट A इज इक्वल टू 3x, B इज इक्वल टू 4y in this formula. Okay, we get the expression like this: 3x minus 4y whole square is equal to A is replaced by 3x, so 3x का whole square plus B is replaced by 4y and its square minus 2 A की वैल्यू x और B की वैल्यू 4y. Next is, we simply solve this expression. 3x का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर यानी 9 और x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड y स्क्वायर, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई these three terms you will get minus 24xy. In this way we can expand this expression. Okay, next is expand x plus 4y whole square. Okay, again think to which formula it resembles. So it's nothing but A plus B का whole square. This resembles to A plus B whole square.
ठीक है। सो नाउ स्टेप 1, कंपेयर a is equal to x, a is plus, a is also plus, then b is equal to 4y. So put a is equal to x and b is equal to 4y in this formula. We get the expression like x square plus 4y square प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4y। ये सारी हमने a और b की वैल्यू इस पूरे फॉर्मूले में पुट कर दी। नाउ सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 8xy। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो अभी ये जो एक्सप्रेशन है दैट मैचेस टू नथिंग, no formula. Okay, so first of all we arrange it. How? आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ट्राई टू कन्वर्ट दिस 9 इंटू 3 स्क्वायर एंड 25 एज 5 स्क्वायर। सो आवर न्यू एक्सप्रेशन इज 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। Now this expression matches to the formula a square minus b square. Okay, पहले यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, so we have converted into square. Okay, यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ना था because एक स्क्वायर है, तो हमने 9 को लिख लिया 3 स्क्वायर, that becomes 3x का whole square. Now comparing again the two expression, a equal to 3x and b equal to 5. So put a is equal to 3x and b equal to 5 in this formula. We'll get, yes, 3x square minus 5 square is equal to 3x minus 5, क्योंकि a को 3x रख दिया और b को 5, इसी तरह 3x और यहाँ पे 5 पुट कर। तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर आ गए। लीनियर फैक्टर किसे कहते हैं? ऐसे फैक्टर्स जिसमें वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल यानी x की डिग्री क्या हो? 1 हो। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की डिग्री क्या है? 1, इस वाले में भी और इस वाले में। सो वी हैव ब्रेक इट इनटू द लीनियर फैक्टर। नेक्स्ट इज एक्सपैंड x प्लस 3y होल क्यूब। हमने दो तरीके के फॉर्मूले किए हैं, एक होल स्क्वायर वाले और एक होल क्यूब। सो नाउ थिंक ओवर इट कि किस फॉर्मूले से मैच करता है। So that comes in our mind, a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Okay. Now again comparing, a equal to x, b is equal to 3y. Okay. So a is equal to x, b is equal to 3y. We will put these values in above formula. इस फॉर्मूले में हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरीके के आ जाएगा। Here you can see a is replaced by x and b is replaced by 3y. So that becomes x cube plus 3y whole cube plus 3 into x into 3y. a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3y। ब्रैकेट स्टार्ट, a की वैल्यू x एंड अगेन b की वैल्यू 3y। नाउ सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, ये तो एज इट इज़ रहेगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 27 y क्यूब प्लस, अब इस एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 9x स्क्वायर y, हेयर इट इज़, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 27x y स्क्वायर। ओके, सो हेयर वी गेट द एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट इज expand 2x minus 3y whole cube. Okay, now this expression matches to a minus b whole cube. Again comparing, we'll get a as 2x, यहाँ पे फिर माइनस है, दोनों तरफ माइनस है। ओके, तो b इक्वल टू 3y। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 3y, और ये हमने कहाँ पुट करना है? इस फॉर्मूले में। तो हमें एक्सप्रेशन मिला लाइक दिस, a is replaced by 2x
तो 2x की होल पावर 3 माइनस बी इज रिप्लेस बाय 3y होल पावर 3 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3y। नाउ वी सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 8x³ माइनस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 27y³। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 36x² प्लस 54xy²। सो दिस इज द वे हाउ वी एक्सपेंड द टर्म्स। ओके, अब यहाँ पे होल पावर नहीं है, देयर इज नो होल पावर, तो इट मीन्स वी हैव टू फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब वी हैव टू ब्रेक इट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स। लाइक अब यहाँ पे क्यूब है तो ट्राई टू कन्वर्ट 27 इन पावर्स ऑफ 3। Similarly 125 is also okay. So here we change our expression to 3x whole power 3 minus 5 की power 3. Now this expression resembles to a cube minus b cube. Compare the two, a की वैल्यू 3x आ जाएगी और b की वैल्यू 5, और ये दोनों वैल्यूज़ आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। So we'll get the answer as when you replace a by 3x and b by 5. Yes, here it is. Similarly यहाँ पे पुट किया 3x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3x into 5. Now solve this. After solving 3 का स्क्वायर is 9, 9x square, 25 plus 15x. So you can see how we have factorized the term. Okay, next is x³ plus 8. Again convert 8 into power of 3. Okay, that is 2 की power 3. Our new expression will become like this, and this resembles to formula a³ plus b³. Okay, do write. Here is your formula. Put a is equal to x and b is equal to 2 by comparing these two. Okay, a की वैल्यू x आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई, तो ये वैल्यू इस पूरे फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कैसे आएगा, here it is. नाउ सॉल्व दिस, ये तो एज इट इज़ रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, सो दैट इज़ द फैक्टराइजेशन. ओके, सो दिस वाज हाउ वी कैन यूज फॉर्मूले. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन है क्या वर्ड? ओके, द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन पॉलिनोमियल as product of two or more polynomials are called as factorization. तो पहले इसमें वर्ड समझे, पॉलिनोमियल क्या होता है. ठीक है, अगर मैं कहती हूँ 3x प्लस 4y तो इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन. ओके, इफ आई राइट a प्लस b प्लस c, now I will say trinomial because there are three terms a plus b plus c and all the three terms are connected by plus or minus sign. okay, तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल जो है दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को के बीच में प्लस या माइनस साइन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है और आप उस पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दें तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन. जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था. इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दिस इज़ ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या है? इसमें दो टर्म्स है, बाइनोमियल कहोगे इसे. दिस इज़ अ बाइनोमियल. ओके, अब इन दो टर्म्स को आपने कैसे एक्सप्रेस किया? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. ठीक है, एक ये वाली टर्म और एक ये, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. ओके, तो इसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. जब आप किसी एक पॉलिनोमियल को ब्रेक करके दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
factorization. For example, 4x square minus 2x. ओके, इसमें से आपने कॉमन निकाल लिया, दैट इज़ 2x, और ब्रैकेट में क्या रह गया, x माइनस 1. तो आप देख रहे हो ये एक पॉलिनोमियल दिया था, इसको आपने ब्रेक कर दिया दो में, एक है 2x और दूसरा x माइनस 1. ओके, दिस इज फैक्टराइजेशन. यहाँ पे 2x और x माइनस 1 क्या है, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 4x माइनस 2x. ओके, तो अभी जैसे मैंने बताया पॉलिनोमियल इज दी एक्सप्रेशन, अभी बताया पॉलिनोमियल क्या है, इट इज़ द एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू algebraic टर्म्स कनेक्टेड बाय दी ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स मीन्स प्लस और माइनस साइन. ओके, नेक्स्ट इज देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन. आप कई तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी एक पॉलिनोमियल को ब्रेक करके दो या दो से ज़्यादा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका पहला मेथड मैंने आपको बताया सिंपल फैक्टराइजेशन. इसमें क्या होता है, वी जस्ट टेक आउट कॉमन. जैसे 3x स्क्वायर प्लस 6 है, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, व्हाट 3, सो यू हैव 3x स्क्वायर प्लस 2. ओके, इसमें से कॉमन लिया. नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग. अगर आपके पास 4 टर्म्स आती हैं तो आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो. सी हाउ, हियर इज द एक्सप्रेशन. आपने दो दो की पेयरिंग कर ली. ओके, ये दो दो की पेयरिंग कर दी. अब इसमें से कॉमन निकल रहा है a और इसमें से कॉमन निकल रहा है x. टेक आउट द कॉमन टर्म्स, वी गेट द एक्सप्रेशन लाइक दिस. अभी फिर इन दोनों में और इसमें कॉमन चीज़ निकल है, व्हाट इज़ दैट, b प्लस सी. सो टेक आउट b प्लस सी एज कॉमन एंड व्हाट इज़ लेफ्ट, a प्लस एक्स. तो आप देख सकते हो जब 4 टर्म्स हो तो इस केस में हम ग्रुपिंग करके भी जो है फैक्टर्स बना सकते हैं. ग्रुपिंग की, कॉमन निकाला और फिर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा. नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय यूज़ ऑफ फॉर्मूले. फॉर्मूले कौन से, जो अभी आपने पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आपने ए क्यू माइनस बी क्यू पढ़ा, और एक ए क्यू प्लस बी क्यू. ये 3 फॉर्मूले पढ़े. यू कैन यूज़ दोज फॉर्मूले ऑल्सो. ओके, लुक एट द एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर माइनस 25. यहाँ स्क्वायर है तो ट्राई टू कन्वर्ट 25 इन दी पावर्स ऑफ, इन दी पावर्स लाइक 5 स्क्वायर and 9 as 3 square. So you have new expression as 3x का square minus 5 का square. Now this expression matches to a square minus b square. Okay, apply the formula. So you have 3x minus 5 into 3x plus 5 by using formula. Here it is. Okay, that is on your screen. एंड नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टाइम. अब मान लीजिए आपके पास 3 टर्म्स दिए हैं. लुक एट द स्क्रीन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. हम क्या चाहते हैं, इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर दें. स्प्लिट कैसे करना है, स्प्लिट 2 नंबर्स में करना है, इस तरीके से कि अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6 आना चाहिए, और ऐड करें तो -5 आना चाहिए. ओके, तो वो 2 नंबर्स क्या हैं, पहले 6 के फैक्टर्स बनाइए. क्या क्या बनते हैं, एक तो 6 1 ज़ा 6 होता है, और एक होता है 3 2 ज़ा 6. ओके, अगर आप 6 1 ज़ा 6 यानी 6 और 1 लेते हो तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 6 आता है. लेकिन 6 में से 6 जमा 1 कितना होता है, 7, जबकि हमें क्या चाहिए, -5. और अगर आप 6 माइनस 1 करेंगे तो उस केस में 5 तो आ जाएगा, सॉरी -6 और 1 लेंगे तो 5 तो ज़रूर आ जाएगा. लेकिन -6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा, इट विल बी -6. तो इट मीन्स दिस विल नॉट वर्क. तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6. अब 3 और 2 को आप मल्टीप्लाई करो, 6 आता है, और 3 और 2 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 5. ठीक है, इसलिए हमने -5x को ब्रेक किया -3x -2x. अब ये 4 टर्म्स होगी, 4 टर्म्स में हम फिर पेयरिंग लगाएंगे.
and we will take common. Here it is. तो आप देख रहे हो एक्स के माइनस 3x माइनस, अब क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है तो ये माइनस था ये बन गया प्लस, ये प्लस था तो ये बन गया माइनस। आप जानते हो जब ये माइनस कॉमन निकालते हो तो अंदर की टर्म्स के साइन बदल जाते हैं। ओके, अब ये हमने कॉमन ले लिया, पहले ब्रैकेट से x कॉमन निकला और दूसरी से 2 निकला। तो अब आप देखो इन दोनों में फिर कॉमन है, दैट इज़ x माइनस 3, विल टेक इट आउट, देन वी हैव दीज एज x माइनस 2 एंड x माइनस 3 एज फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x। ओके, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया कि हमने स्प्लिट कैसे किया है। तो ये नीचे देखिए ऑन द स्क्रीन, फॉर स्प्लिटिंग वी नीड 2 नंबर्स। पहले तो ध्यान रखें स्प्लिट करने के लिए हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि सच दैट उन 2 नंबर्स को ऐड करें तो 5 बनना चाहिए और गुना करें तो 6 बनना चाहिए। तो ये 2 नंबर क्या थे, 3 और 2। ये नीचे बताया गया है, फॉर दैट फैक्टर्स ऑफ 6 आर 6 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2। ओके, तो 6 गुना 1 1 बनता था और 3 इंटू 6, बट वी रिजेक्ट 6 इंटू 1। अभी आपको बताया वाई वी हैव रिजेक्टेड 6 इंटू 1। सो p प्लस क्यू, बिकॉज इससे हमें p प्लस क्यू यानी 2 नंबर्स का सम जो है वो 5 नहीं मिलता, इसलिए हमने ये वाला रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। एक्चुअली हम कैसे स्प्लिट करते हैं, चूज़ 2 नंबर्स p एंड q। 2 नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं सच दैट देयर सम इज़ b। इनका सम क्या आना चाहिए, b। उन दोनों नंबर्स का सम b आना चाहिए, और अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें देन इट विल आंसर एज a इंटू c। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, रूट 3x square plus 11x plus 6 root 3. Okay, here is your expression. First of all, we will compare it with ax square plus bx plus c. Okay, after comparing, we get the value of a as root 3. Okay, देखो a root 3 और फिर x square। नाउ प्लस प्लस b 11 के बराबर है x ओके, प्लस c जो है दैट इज इक्वल टू 6 रूट 3। ओके, तो आप देख रहे हो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब हमें 2 नंबर ऐसे चूज़ करने हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 18 बन जाए। 18 कैसे, 6 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। ठीक है, तो आप देख रहे हो दैट इज इक्वल टू 18। ओके, अब मुझे 2 नंबर ऐसे बताओ या 18 के फैक्टर्स बताओ। ओके, तो क्या बनेंगे, 9 इंटू 2 और एक 6 एंड 3। 9 2 ज़ा 18 होता है और एक 6 3 ज़ा 18 होता है। तो 2 नंबर मुझे ऐसे चूज़ करने हैं कि उनका सम 11 होना चाहिए। अगर मैं 6 और 3 लेती हूँ तो 9 बनता है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर ठीक नहीं है। तो मैं क्या लूँगी, 9 और 2। ओके, in order to factorize we have to find 2 numbers p q such that p plus q is equal to b which is equal to 11 and p into q is equal to ac that is equal to 18. Clearly 9 plus 2 is 11 and 9 into 2 is 18. Okay, दोनों बातें पूरी कर रहा है। स्टेप 2, अब आप इसको ब्रेक कर दीजिए। किसको ब्रेक कर देना है हमें, ये 11x को हमने ब्रेक कर दिया 9x और 2x। अब इसके बाद पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद विल टेक आउट कॉमन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने रूट 3x कॉमन निकाला, रूट 3x, तो यहाँ बचा x, यहाँ पे 3 रूट 3 बचा, यहाँ से कॉमन निकाला 2, तो यहाँ 3 रूट 3। अब इन दोनों में भी कॉमन है x प्लस 3 रूट 3। तो हेयर इज योर next is solve by factorization method. Again compare it with
ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 10। ओके, चूज टू नंबर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 10। तो 10 के फैक्टर क्या बनते हैं? 10 1 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10। तो आप मुझे बताइए 7 कैसे बनेगा? 5 और 2 पे। ओके, इन दिस मेथड स्प्लिट द middle part 7 into 2 parts such that sum is 7 and product is plus 10. So numbers are 2 and 5. So we have break it into 2. Now pairing, next step is pairing, then take out common. इसमें common आप x plus 2 ले सकते हैं. So here we get the answers. अब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ऐसा कब होता है? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। सो आइदर x प्लस 2 इज़ 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड और दूसरे पार्ट से x की वैल्यू -5। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बाय फैक्टराइजेशन। ये स्पेसिफाई कर दिया अब आपको कि आपने x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, thus -2, -5 are the roots of this given equation. Next is factorization formula और quadratic formula. फॉर्मूले की हेल्प से भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लुक एट द स्क्रीन। If a, b, c are real number, then ax square plus bx plus c equal to 0 has solution. इसका solution हो सकता है कैसे? By the formula x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Okay, where a should not be equal to 0. यहाँ पे a की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होगी तो ये इनडेफिनिट बन जाएगा। ठीक है, ओके, विल सॉल्व अ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन निकाल। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यानी वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंपेयर, ओके, and will find the values of a, b, c. Okay, yes, a x square, here is x square, तो it means a की वैल्यू क्या होगी? 1. नेक्स्ट b x लिखा है, तो it means b की वैल्यू 7 के बराबर है, and next c is equal to 10. Now put all these value in this formula. So x is equal to, now put all these value in this formula, we'll get -7, क्योंकि b की वैल्यू क्या है? 7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। ओके, और ये हो जाएगा 40 विद इन द अंडर रूट, तो 49 minus 40, okay, here is the expression, and divided by 2. So we have got those values. एक आ गई -2 और दूसरा आ गया 5. तो I think all of you जो you comes to know how we apply formula either for expansion or for the factorization purpose. Thanks a lot, and if you have any query you can ask anytime. Thank you.